we were privileged to have with us today as chief guests for the parade, foreign dignitaries from the EU, and here, rising up in the blue sky and carrying with them the aspirations of the largest democracy and one of the youngest populations in the world, hundreds of balloons in the colors of the national flag. And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only will this a novel experience for them, but also give many a glimpse of our diversity, cultural heritage, and national wonder. भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सामान्य मंच से अब कुछ ही क्षणों के उपरांत समारोह पूर्वक राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। उनके साथ ही इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे विशेष मेहमान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बहुत ही विशद, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रभावशाली 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन का गुंबद देखा जा सकता है। इस कर्तव्य भवन से कर्तव्य पथ से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐतिहासिक बग्गी में विशिष्ट मेहमान अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण करते हुए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, भारत और यूरोप की सहभागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में यूरोपीय कमीशन के देशों और भारत को प्रगति के नए आयाम पर ले जाने में कामयाब होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगे आने वाले दिनों में बहुत से महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं सहयोग की दिशा में। परंपरागत बग्गी में माननीय रैली इधर नहीं आ रही, वहाँ से मुड़ जाते हैं मेडिकल की बाजू से समारोह पूर्वक उनको राष्ट्रपति भवन लेकर के जाएंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जैसा हमने शुरू में कहा, एक अद्वितीय एयरबॉर्न कैवलरी रेजिमेंट है। राष्ट्रपति महोदय उपस्थित जनसमूह का जो कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर उपस्थित हैं, अभिवादन करती हुई उनका Naval Force Atlanta Naval Force Aspid. And close behind them, approaching the saluting race with dignity and shared purpose, we have leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. दाढ़ी अच्छे से नहीं आ रही, कुछ उपाय है उसको? और कितने अच्छे से ले आना, नहीं ज़्यादा वाले ले आना है।
वो तो सेट होके नहीं आती And क्या in the एकदम? Kartavya Path now is Prahar formation comprising one Dhruv नहीं आएगी, advanced इससे ज्यादा घनी नहीं आ helicopter सकती, carrying the Operation इतना Sindhu आती है, flag आती है। of the Indian हाँ, Army वही। along with Rudra वो खाने पीने से भी established लाते by the Indian Army and नहीं। A-List Block 4 of the Indian Air Force formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. A-List WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and A-List Block 4 flown by Group Captain Arunab Park. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ज़्यादा नहीं दिखा। देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए। क्या शादी है अभी 13 तारीख। A lovely fair start classic foray. 13 तारीख मतलब अभी तो एक बार आना पड़ जाएगा। And we are going past the saluting base led by Lieutenant हाँ, Arjun, हाँ, Captain हाँ। of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying in the Ganu formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters, flown by Colonel Retired Sharma Sena Medal, along with Captain Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ जी सर। और साथ में ग्रीन बैटल टैंक 77 पंकज रेजिमेंट के कैप्टन अरे, बड़े सर। मशीनी विस्फोटक अपनी गर्जना से वातावरण को विद्यमान कर रहा है। और इसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्तिशाली प्रतीक बनेंगे। टू गार्ड के कैप्टन अक्षय कुमार बारी के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 में हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। बैठो मालिक। नारायण भाई को फ्री कर रहे हैं आपके लिए, टेंशन मत लो। दो बात कर लेना साथ में बैठ के, दो दोस्त जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो Hansa Light Strike Vehicle LSVs. जाएगा First LSV represents the आपके लिए रुकेगा 2 मिनट। component. The second LSV represents the second component. And the third LSV behind it. कभी रुकोगे ना, Component. बात तो कर सकते हैं भाई एक साथ 2 मिनट। कल के मैच की 24 छक्के की जो बारह टाइम हमारे साढ़े 10 ओवर में खत्म करती है। ताकतवर हो गया तो बस भारत। चलता तो 6-7 ओवर भी निपटा देते। भारतीय टीम भी है, ताकतवर हो गई है। फिट डालते किसी से हाँ डाल दो वहाँ। जहाँ डाल दो वहीं मार देते।
ऊपर मुंह की तरफ भी मारो तो भी छक्का उड़ा देते हैं। सूर्य सूर्य है ना, सूर्य भाई छोड़ेगा नहीं। फॉर्म लौट के आ गया। सूर्य कुमार यादव है ना, क्या unmanned systems, robotic dogs and UGVs इस समय कर्तव्य पथ पर मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड UGV उसकी कमान संभाली है गोलका राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। MSCE और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिवान और दिव्यास्त्र वाहन भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिवान और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। बाल काटना भी है ना। वाहन की कमान हाँ रतन मिश्रा ने संभाली है और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सुविधा